ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, ये इक्वल आ गए और इसके साथ साथ ये इसके इक्वल आ गए। तो बेसिकली अब काम क्या है, इन सबको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें? अब देखो क्वेश्चन में कुछ दिया है, अगर ऑप्शन देखें, Hello everyone, I am Pradeep Kumar, Mathematics faculty at Toppers Academy, and today we'll discuss one of the PYQ from 2023 JEE Mains. Okay, this question is from your sequence and series, you can say. Okay, here you have 2n square plus 3n plus 4 divided by 2n whole factorial, sigma where sigma n is equal to 1 to infinity. Okay, so find this sum. So how can you find it? You can say this is sigma, okay, sigma n is equal to 1 to infinity, and this is 2n square plus 3n plus 4 whole divided by 2n whole factorial. Okay, so you can write this sigma as sigma n is equal to 1 to infinity. You can say this is 1 by 2 into, that is 4n square plus 6n plus 8 whole divided by 2n whole factorial. Yes, now you can take 1 by 2 outside from your sigma, so 1 by 2 sigma n is equal to 1 to infinity, and this can be written as what? This can be written as 4n square minus 2n plus 8n plus 8 whole divided by 2n whole factorial. Okay, so now sir, you can write this thing as 1 by 2 sigma n is equal to 1 to infinity. Okay, that is what? 2n common, so you left with 2n minus 1 plus 8n plus 8. Yes, and whole divided by 2n factorial, this 2n factorial, yes, and this is divided by 2n factorial. Got it? So this is your sigma. Got it? Now sir, you can write this thing as 1 by 2 sigma n is equal to 1 to infinity, this can be written as what? 2n factorial, 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 factorial. So that will be what? 1 by 2n minus 2 factorial plus, this can be written as 2n into 2n minus 1 factorial. Okay, 2n into 2n minus 1 factorial. So 8n by 2n, you can say 4 by 2n minus 1 factorial, 4 by 2n minus 1 factorial plus, next is 8 by 2n whole factorial, 8 by 2n whole factorial. Okay, so that's the thing. Clear? Next one is you can break your means you can distribute your sigma here. So this will be 1 by 2 into, so that sigma will be 1 by 2 into sigma, or you can say that is 1 by 2 into sigma n is equal to 1 to infinity 1 by 2n minus 2 factorial. Yes, 1 by 2 into this plus 4 divided by 2 is 2. So 2 by plus 2 sigma n is equal to 1 to infinity 1 by 2n minus 1 factorial. Next is plus 8 by 2, which is 4 sigma, that is 4 sigma 1 by 2n whole factorial, n is from 1 to infinity. Okay, so this is my required thing. Okay, okay, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, ये इक्वल आ गए और इसके साथ साथ ये इसके इक्वल आ गए। तो बेसिकली अब काम क्या है, इन सबको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें? अब देखो क्वेश्चन में कुछ दिया है, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है कुछ ई की टर्म्स में, है ना, ई और 1 बाई ई की टर्म्स में। तो एक चीज हम जानते हैं कि ई पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स। ओके, ना चलिए देखते हैं, ई पावर एक्स इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, e पावर 1, अगर x को 1 रख दें, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा, e पावर 1 इज इक्वल टू e विच इज 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ओके, नेक्स्ट अगर x को -1 रखेंगे तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो क्या मिलेगा, e पावर -1 विच इज 1 बाय e विच इज 1 -1 plus 1 by 2 factorial, yes, minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial and so on। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो
ई प्लस वन बाई ई, क्या मिलेगा? ई प्लस वन बाई ई, ई प्लस वन बाई, दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये टू टाइम्स आ जाएंगे, 2 टाइम्स 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो। ओके, एंड नेक्स्ट इज अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर ई माइनस वन बाई ई कितना आ जाएगा? ई माइनस वन बाई, सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ओके 1 प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस सो। ठीक है, ध्यान तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, अब ये चीज हमें पता चल गई। अब यहां पे देखो ये क्या लिखा है, अगर इसको देखेंगे तो दैट इज 1 अपॉन, एन को 1 पुट किया तो 1 अपॉन, इसको देखते हैं सिर्फ, है ना? तो क्या लिखा है ये? नाउ अगर सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल को देखे सिर्फ, ओके, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल को अगर सिर्फ देखे तो क्या लिखा है? n को 1 रखा तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज 1, सो 1 प्लस 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 माइनस 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल प्लस 3 रखेंगे तो 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, अब ध्यान से देखो ये कहाँ है? 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल 1 बाई 6 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा? e प्लस 1 बाई ई होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो दैट इज e प्लस 1 बाई ई होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n minus 1 factorial, yes 2n minus 1 factorial, 2n minus 1 factorial। so सर ये क्या बनेगा? n को 1 रखो, n को 1 रखा तो 1 अपॉन 2 minus 1 1 factorial which is 1 प्लस 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 3 factorial प्लस 3 रखेंगे 1 by 5 factorial and so on। और ये कितना है? ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? ये कितना? e minus 1 by e by 2, e minus 1 by e whole divided by 2। ओके, एंड नेक्स्ट कौन बचा? सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाय 2n होल फैक्टोरियल, यस 1 बाय 2n होल फैक्टोरियल, 1 बाय 2n होल फैक्टोरियल। सो दैट इज व्हाट? दैट इज यू कैन से n को 1 रखा तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, है ना? इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये क्या लिखा है देखो, 2 टाइम्स दिस, यस। अगर यहां से आप ऑब्जर्व करें तो क्या लिख पाएंगे? हम लिख पाएंगे e प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा अगर इसको देखें तो e प्लस 1 बाई ई माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 ना, होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये चाहिए हमें, है ना? 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल, ये कितना बन जाएगा? टिल इन्फिनिटी कितना बन जाएगा? e प्लस 1 बाय ई प्लस 1 बाय ई माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2, यस और नो? ठीक है, तो तीनों वैल्यू आ गई, ये तीनों वैल्यू आ गई, और अब क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा? तो मैं कहूंगा कि रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट? रिक्वायर्ड आंसर इज दैट इज सर हाफ इंटू व्हाट? हाफ इंटू दिस सम e प्लस 1 बाई ई होल डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स e minus 1 by e whole divided by 2 plus 4 times e plus 1 by e minus 2 whole divided by 2, yes। तो ये कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो e by 4 plus 1 by 4e plus e minus 1 by e plus 2e plus 2 by e minus 4 ना, माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? e बाय 4, ओके, e बाय 4 और 2e प्लस e, दैट 2e प्लस 2e 3e
3 plus e by 4. 3e plus e by 4. 3e plus e by 4 is 13e by 4. Yes, 13e by 4. Okay. Next देखें 1 by 4e. Okay, 1 by 4e. And पहले इसको देख लेते हैं 2 by e minus 1 by e. So 2 by e minus 1 by e is 1 by e. Okay, 1 by e and 1 by 4e. 1 by e plus 1 by 4e. बाहर ले लेंगे 1 by e तो कितना बनेगा 5 by 4. Yes, so plus 5 by 4e. Okay, और क्या बचा भाई, और बचा सर -4 और बचा -4. ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये मिल रहा है. देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. 13e by 4. ठीक है सर, यहां भी है 13e by 4 प्लस 5 by 4e प्लस 5 by 4e. ठीक है भाई, -4 तो क्या आंसर आ जाएगा बी. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा बी इज द फाइनल आंसर. क्लियर है ये चीज. तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी होगा. ठीक है, तो ये आंसर रहा इस क्वेश्चन का. इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस व्हाट, और इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस व्हाट, विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.